Come on to the radio on Saturday. Oh, no. Okay. Hi, Girish. Good evening. Are you able to hear me? Hi, Rishika. How are you doing? Hi, Aditya. Good evening. All right, great. Namaste, Tharv. Good evening, Ashish. All right. No, no, not solo. I'm all right. I'm good. Uh, I'm just waiting for more students to join so that we can begin. Okay, you enjoyed the KVBY session? Nice. Okay. All right, Asarf. Okay, so let's do a little bit of recap of regarding. Okay, let's do a little recap of what we have seen in the previous session. Last session में हमने perpendicular axis theorem की बात करी थी, ठीक है? And I hope you remember कि perpendicular axis theorem सिर्फ planar objects के लिए valid होती है. इस पे तीन mutually perpendicular and concurrent axes they are involved, and two out of the three axes should lie in the plane of the object, and this obviously means that the third object uh, should be placed perpendicular to the plane of the object. ठीक है? So once we draw this figure, we can then write that I3 will be equal to I1 plus I2. So this is the perpendicular axis theorem. अब हमको ये देखना है कि इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है? So let me just show you कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं. So we have to find out the moment of inertia of a uniform disk of mass m and radius r about a diameter. All right, like let me just use a figure. Like अगर हम इस figure की बात करें, ठीक है, let me just put this figure on that particular slide so that it is available with you in the replays also. ठीक है, I'll just put this figure. It will not take much of a time. All right, yeah. So we want to find out moment of inertia about an axis through a diameter. ये समझ में आ रहा है? Like if this is the center of the disk, this becomes one of the diameter. So let's erase this axis. We are not interested in this axis anymore. ठीक है? So is this question clear to you all? Like we want to know the moment of inertia about this diameter. Question सबको समझ में आ रहा है? All right. Okay. So now how can we do it? Let's say moment of inertia about diameter. Let us call this as x. So if moment of inertia about this axis is x, if I draw another axis, or let me call it like this, if I draw another diameter, and if I ask you the moment of inertia about this diameter, are you going to say that it is x? Will you agree with me? एक डायमीटर के अबाउट एक्स है, तो अगर मैं ऐसा ही एक और डायमीटर बना दूं तो उसके अबाउट भी एक्स होगा. एंड डेलिबरेटली मैंने जो दूसरा डायमीटर बनाया है वो फर्स्ट वाले के परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है? अगर इसके अबाउट एक्स है, अगर इसके अबाउट एक्स है, तो अब अगर मैं एक थर्ड एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लूं, ठीक है, नॉट लाइक दिस, लाइक पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, अगर ऐसे ड्रॉ कर लूं तो इसके अबाउट व्हाट आर यू गोइंग टू से? इसके अबाउट कैन आई से कि 2x होगा, ठीक है? कैन आई से 2x होगा, राइट? बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बट वी ऑलरेडी नो, मतलब वी आर क्लेमिंग दैट इसके अबाउट 2x होना चाहिए, बट वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इस ग्रीन एक्सिस के अबाउट क्या होता है, क्योंकि ये ग्रीन एक्सिस तो एक स्टैंडर्ड एक्सिस है, ठीक है? सो वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट द वैल्यू शुड बी mr स्क्वायर बाय 2.
Now this makes the value x as how much? It makes it mr square by 4. तो ये हमारा आंसर आ गया, चेक करो। आ रहा है क्या तक समझ में? मतलब इज दिस पार्ट क्लियर? सो इफ यू वांट यू कैन इवन रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि एक डिस्क का डायमीटर के अबाउट जो होता है वो होता है mr स्क्वायर बाय 4। क्लियर है ये? ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन व्हिच विल बी सिमिलर टू दिस बट स्लाइटली like an extension of this you can say. So let's say we have a ring this time. ठीक है, I'll have to draw the ring. Okay, let me give you another example. So let's say we have a ring like this. Yeah. Uniform ring है, m mass r radius की, and we would like to know the moment of inertia about an axis like this. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब टेंजेंशियल टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग। टेंजेंशियल भी है और रिंग के प्लेन में भी लाई कर रही है। ठीक है, तो ट्राई टू गिव मी अ वैल्यू फॉर दिस। टेंजेंशियल भी है और प्लेन में भी है, एक डायमीटर इसके पैरेलल जो डायमीटर है वो ये है। ठीक है, दिस विल बी अ टू स्टेप प्रोसेस फॉर नाउ। मतलब पहले हम आई अबाउट डायमीटर पता लगाएंगे एंड देन वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू फाइंड आई अबाउट दिस एक्सिस। इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ। Okay, Ayush has given me some result and it is the correct one. Rishika, no, this is a ring, not a disc. This is a ring. And same for you, Ashish. ये यूनिफॉर्म रिंग कह रहा हूँ मैं। ठीक है आशीष, तुमने भी डिस्क मान के किया है। करेक्ट करेक्ट ऋषिका, करेक्ट गिरीश। यस आशीष करेक्ट। तो पहले नो सर नॉट करेक्ट। करेक्ट आदित्य। पहले डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, तो डायमीटर के अबाउट तो वैसे ही निकाल लेंगे जैसे अभी निकाला था। एक डायमीटर के अबाउट एक्स तो दूसरे के अबाउट भी एक्स। तो ये जो 2x की वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के। तो x की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये रेडियस के इक्वल होगा। तो I1 निकालने के लिए वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो I1 विल बी ID प्लस mr स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। देखो क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है जो भी हमने करा है। डिस्क का जो रिजल्ट हमने किया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो रुको, एक इम्पॉर्टेंट टैक्टिक पे जाने से पहले एक और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, दिस एग्जांपल इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ स्क्वायर प्लेट। ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट। ठीक है, मास इसका m मान लेते हैं, लेंथ इसकी l, साइड लेंथ l मान लेते हैं। ठीक है, एंड नाउ आई विल बी ड्राइंग मल्टीपल एक्सेस। तुम्हें उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने हैं। ठीक है, इसके अबाउट ये सेंटर से पास कर रही है। क्विकली गिव मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछा है। क्विकली गिव मी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वन। स्क्वायर प्लेट है, इसी के प्लेन में एक एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है और एक साइड के परपेंडिकुलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। करेक्ट गिरीश, करेक्ट आयुष। व्हाट अबाउट अदर्स? स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछा है, कुछ कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, ओरली आंसर करना है। ओके करेक्ट ऋषिका, या करेक्ट Girish, Ayush and Rishika, they have given me the answers. What about others?
and Ashish is saying he is not able to see anything written on the board. Can others see what is written on the board, like what figure I have made? Are others able to see a green color square with some okay? आशीष एक बार अपने साइड पे रिफ्रेश करके देखो. नो आदित्य, नो. अरे स्टैंडर्ड रिजल्ट है ml स्क्वायर बाय 12 नहीं होता क्या? एक रेक्टेंगल का जो रिजल्ट होता है वही तो यूज होगा. मतलब इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12. इफ आई से दैट, let's say this axis is I1, then the value of I1 will be ml square by 12. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस एक्सिस? अगर एक ऐसी एक्सिस ले ले जो परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट कितना होगा? इसके अबाउट I2, I2 भी यही हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 12. क्लियर है? अब देखो मैं एक डिफरेंट एक्सिस ले रहा हूँ. ओके कूल आशीष. अब मैं एक डिफरेंट एक्सिस ले रहा हूँ. एक जनरल एक्सिस लेते हैं जो सेंटर से पास कर रही है. ठीक है, जैसे लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. किसी एंगल थीटा पे मैंने एक ब्लू कलर की एक्सिस ड्रॉ कर ली है. क्लियर है? ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं x है. तो अगर मैं एक और ब्लू कलर की एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर लूं, ठीक है, विद एन एंगल थीटा फ्रॉम हेयर, विल यू एक्सेप्ट द आइडिया कि इसके अबाउट भी x ही होना चाहिए? ये चेक करो. अगर मैंने फर्स्ट ब्लू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया x माना है, तो क्या हम सेकंड के अबाउट भी x मान सकते हैं? ठीक है, तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है. लेट्स से मैं सेकंड एक्सिस को मिटाकर फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो फर्स्ट एक्सिस जो है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब सेकंड एक्सिस ना बनाकर, ठीक है, अगर हम सिंपली फिगर को, मतलब पेज को, अपनी कॉपी को तुम 90 डिग्री से घुमा दो अगर क्लॉकवाइज, तो तुम्हें फर्स्ट एक्सिस सेकंड की जगह दिखाई देने लग जाएगी. आ रहा है समझ में? सो दैट मीन्स कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होना चाहिए, क्योंकि कॉपी घुमाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ी ना फर्क पड़ना चाहिए. आर यू गेटिंग माय आर्गुमेंट? अगर तुम अपनी कॉपी में सिर्फ फर्स्ट ब्लू एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर अपनी कॉपी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है, और अब तुम अगर ऑब्जर्व करो कि ब्लू एक्सिस अब कैसी हुई है, स्क्वायर तो जैसा था वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, स्क्वायर तो जिस तरीके से रखा हुआ था उसी तरीके से दिखाई देने लगेगा, लेकिन एक्सिस 1 अब तुम्हें 2 की जगह पे दिखाई देने लगेगी. ठीक है, तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहना चाहिए. दैट मींस I1 और I2 इक्वल होना चाहिए, दोनों x होने चाहिए. ठीक है, अच्छा क्या ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी है? नोटिस करो, जो मैंने जो दो एंगल मैंने थीटा मार्क कर रहे हैं, क्या उससे ये भी प्रूव हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हैं? हो रहा है प्रूफ. तो अब अगर ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हैं, तो इसका मतलब x प्लस एक्स जो होगा वो इक्वल होना चाहिए इस प्लेन से बाहर निकलती हुई एक्सिस के अबाउट. मतलब ये इक्वल होना चाहिए ml स्क्वायर बाय 6 के. ये चेक करो समझ में आ गया? ये मैंने कैसे लिखा? हम I1 और I2 को यूज करके, जो जैसे I3 बोर्ड से बाहर आती हुई जो एक्सिस है उसके अबाउट तो आई लिख ही सकते हैं. ठीक है, तो वो बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 6, और x का सम भी ml स्क्वायर बाय 6 ही होना चाहिए. तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? यहां से x की वैल्यू भी ml स्क्वायर बाय 12 भी आ गई क्या? ठीक है, तो कंक्लूजन एग्जैक्टली यही है जो ऋषिका ऑब्जर्व कर रही है, कि तुम स्क्वायर के प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो जो सेंटर से पास कर रही हो. और ये रिजल्ट मैं स्क्वायर के लिए बता रहा हूँ, रेक्टेंगल के लिए नहीं बता रहा हूँ. स्क्वायर के प्लेन में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो जो सेंटर से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 ही मिलेगा. ठीक है, दैट मींस डायगोनल्स के अबाउट भी यही होगा. आ रहा है यहाँ तक समझ में? ठीक है, yes Hardat, you missed few things and stay silent now. नहीं नहीं नहीं, देखो आयुष, रिंग और डिस्क में तो सारी एक्सिस ही डायमीटर होती है. मतलब यू कैन जस्ट से कि एक डायमीटर के अबाउट, जैसे रिंग के लिए एक डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाय 2 होता है. तो यू ड्रॉ एनी अदर सच लाइन, इट विल बी डायमीटर. तो रिंग और डिस्क में तो ऑब्वियस ही था, मतलब उसमें तो इतना आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं थी. लेकिन इस पे क्या है, सारी एक्सिस एक जैसी नहीं है. ठीक है, जैसे ब्लू एक्सिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेड वन, वी कैन सी दैट. ठीक है, लाइक वी कैन इजीली फिगर आउट द डिफरेंस. ठीक है, ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? आ रहा है तक सब समझ में सबको? तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्क्वायर प्लेट का. ठीक है, स्क्वायर प्लेट का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है जिसमें एक इंपॉर्टेंट टैक्टिक लगती है, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक लगती है, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, लेट से हमसे कहा गया इस आधे ऑब्जेक्ट की हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो। ठीक है, हमसे कहा गया हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल दो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स है। अब अगर मैं एक ऐसी ही हाफ डिस्क और इमेजिन कर लूं लाइक दिस। ठीक है, अगर इस फर्स्ट हाफ डिस्क का इसके अबाउट एक्स है तो सेकंड हाफ डिस्क का इसके अबाउट भी एक्स ही हुआ। चेक करो, क्योंकि बेसिकली हमने फिगर को फ्लिप करके देख रहे हैं, या यूं कह लो कि फिगर बीच में, उस फिगर के उस तरफ से जो देखेगा उसको मतलब यही फिगर ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाके रख दें, मान लेते हैं इसका मास m था, इसका मास भी m था, इनको कांटेक्ट में लाके रख दिया, तो एक बात तो ये ऑब्जर्व करो कि जो एक्सिस है वो ओवरलैप कर गई है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इस टेक्निक में एक्सिस ओवरलैप करनी चाहिए। ओवरलैप करने का मतलब ये सेम एक्सिस हो गया, मतलब सी वी व्हाट वी कैन नॉट डू, हम एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर, और मतलब एक्सिस ओवरलैप होगी तभी ऐड करना। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि हमारे को एक डिस्क मिल गई है जिसका मास है 2m और जिसका रेडियस है r। पहले हाफ डिस्क थी, अब एक कंप्लीट डिस्क मिल गई है लेकिन इसका मास 2m है। ठीक है, और इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे अकॉर्डिंग, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2x होना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम जानते हैं वो कहता है कि मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाय 2। तो इसका मतलब x कितना हुआ, यही हो गया क्या? चेक करो, आ रहा है तक समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें अगर आधा ऑब्जेक्ट हमें दिया जाए तो उसको कंप्लीट करके हम इस तरह से आधे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आशीष गलत लिख रहे हो, चेक करो, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। आ रहा है तक समझ में? ठीक है, चलो इसी टेक्निक पे बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं अब। ठीक है, केयरफुली यूज करना। यू सी अ ट्रायंगुलर प्लेट नाउ, देयर इज अ यूनिफॉर्म राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल शीट ऑफ mass m. Find the moment of inertia of this sheet about an axis passing through vertex a and perpendicular to the plane. ठीक है, समझ में आ रहा है? ए पॉइंट से और प्लेन से परपेंडिकुलर, यानी कि स्क्रीन से बाहर आती हुई एक्सिस के अबाउट इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि मैंने ट्रायंगल के लिए तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है। ठीक है, बुद्धि लगाओ। ये क्वेश्चन आईक्यू का ज्यादा है और फिजिक्स का थोड़ा सा कम है, मतलब बुद्धि लगाओ कि जब मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला ही नहीं दे रखा है और ट्रायंगल मैंने पूछ लिया है, व्हाट कैन यू डू? ओके, योत्सना इज गिविंग मी सम आंसर। ओके, लेट मी चेक योत्सना एक्चुअली सॉल्व, या तो ओके मेरे को सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। योत्सना योत्सना इज गिविंग मी एन आंसर, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट दिस। डजंट लुक करेक्ट योत्सना। वो हरदात ने आंसर दिया। ए क्या है हरदात, ए क्या है इसमें? क्वेश्चन में ए कुछ भी नहीं है, ए तुमने क्या ले रखा है वो बताओ। ओके, हरदात लुक्स करेक्ट टू मी। एटलीस्ट मेरी ओरल कैलकुलेशन तो वही चीज बता रही है जो तुम कह रहे हो। विल जस्ट चेक इट आउट। एंड आयुष डजंट लुक करेक्ट, गिरीश डजंट लुक करेक्ट। चलो मैं करता हूँ, एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम किसका कॉम्बिनेशन मान रहे हैं? चलो ये बताओ मुझे कि तुम इसको किसका कॉम्बिनेशन मान रहे हो। हरदात करेक्ट, गुड। सॉरी नॉट हरदात, इट्स अथर्व, सॉरी। यस, करेक्ट गिरीश। करेक्ट करेक्ट, इसको हम चार ट्राइंगल्स कंबाइन करके एक स्क्वायर बना सकते हैं ऐसे। नोटिस करो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है फिगर सभी को?
4 ट्राइंगल्स अगर हम इस तरह से मान लें, देखो हर ट्राइंगल का इस अपनी अपनी एक्सिस के अबाउट एक्स होगा, ठीक है। इस फर्स्ट ट्राइंगल का अपनी एक्सिस के अबाउट एक्स है, इस सेकंड ट्राइंगल का सिमिलर एक्सिस के अबाउट एक्स है, और ये जब हम इनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये बताओ कि चारों एक्सिस ओवरलैप कर जाएंगी या नहीं करेंगी। चारों एक्सिस ओवरलैप कर जाएंगी या नहीं करेंगी? कर जाएगी ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, करनी ही चाहिए, ठीक है। ओवरलैप कर जाएगी, और अब हमको जो स्क्वायर मिल रहा है, इस स्क्वायर का मास है 4m, और इसकी जो साइड लेंथ है ये है √2l, ये भी चेक करो, इसकी साइड लेंथ है √2l ना कि l, इसकी साइड लेंथ √2l हो जाएगी, ये चेक करो, क्योंकि क्वेश्चन में ये लेंथ l गिवन थी, ये दोनों लेंथ l, so if these two lengths are L, then this BC length will be √2L. So we have a square of mass 4m and the side length is √2L. तो बोर्ड से जो बाहर की तरफ एक्सिस आ रही है, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे मास ऑफ स्क्वायर इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ये चेक करो आया क्या समझ में? स्क्वायर के सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मास इनटू लेंथ स्क्वायर बाय 6 ये होता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आई ml स्क्वायर इनटू 2/6 which makes it ml square by 3। just check it। देखो आया क्या समझ में एवरीवन? क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। यस बाय 6 ही तो होगा ऋषिका। हम कौन सी एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं? जो स्क्रीन से बाहर आ रही है और सेंटर से पास कर रही है। तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 करके ml स्क्वायर बाय 6 ही तो मिलेगा। सोचो। Okay, Ayush has said something. I want others to think on this. We'll talk about this method. Very important thing that Ayush has raised here. क्योंकि मेजॉरिटी जनता यही करती है, सो वी हैव टू डिस्कस दिस। परफेक्ट गिरीश। आयुष समझ में आ रहा है गिरीश क्या कह रहा है? तुम अगर ट्राइंगल को फ्लिप करके उनको ऐड करके स्क्वायर बनाओगे तो एक्सेस अलग अलग जगह पे आ जाएंगी, कोइंसाइड ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, आयुष और गिरीश की बात बाकियों को समझ में आई? ठीक है, मतलब आयुष की जो अप्रोच है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, आयुष की अप्रोच है कि इफ वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, और इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम एन आइडेंटिकल ट्राइंगल। कैन आई मेक इट लाइक दिस? यस यस। ठीक है, तो ही इज थिंकिंग अबाउट अज्यूमिंग एन आइडेंटिकल ट्राइंगल लाइक दिस। ठीक है, राइट, चलो मान लेते हैं। तो अब इसका जो इसमें जो हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट आई जो है वो एक्स है, इसमें एक्सिस कोइंसाइड नहीं हो रहे, यू कैन नॉट ऐड देम स्ट्रेट अवे लाइक। अब आयुष इसके आगे तुम्हारे माइंड में कुछ है तो बताओ, बिकॉज यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट सम वी कैन फाइंड एलसीएम काइंड ऑफ सिचुएशन। सो टेल मी नाउ हाउ टू प्रोसीड नाउ। मतलब इस पूरे स्क्वायर प्लेट का इस पॉइंट की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं, बट हमारा एम है ट्राइंगल का पता करना, लाइक inertia of cm, what exactly do you want me to do, Ayush? Should I unmute you? Should I unmute you? Your microphone is not working. Center of आयुष, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाह रहे हो। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर होता, ठीक है, इसका मास सपोज 2m होता, क्योंकि अगर ये m मास का है, इवन दिस विल बिकम m मास, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेता, ये बनता 2m इंटू एल स्क्वायर, ये लेंथ तुमने l ले रखी है, ठीक है, बाय 6 ये बन जाता। अब क्या करूं, इसको इक्वेट किससे करूं? अब इसको इक्वेट किससे करूं?
हमारा एम एक्स निकालना है, इसको इक्वेट किससे करें? ठीक है, इस तरह से नहीं हो पाएगा। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो ऑब्जेक्ट्स तुम इमेजिन कर रहे हो, जिनको ऐड करके तुम एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, उनमें एक्सेस कोइंसाइड होना जरूरी है। ठीक है, आर अदर्स गेटिंग दिस कि अगर इस तरह से ऐड करके प्रोसीड करें तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो आई एम गोइंग टू आस्क अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज वैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, पर लेट्स सी याद है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाती है। तो हमें निकालना है यूनिफॉर्म हाफ डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर शोन इन द फिगर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन। तो हम इसके अबाउट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या? ये अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था हमने, इस पेज पे देखो, या इक्वल टू एक्स करके निकाला था थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ रही थी एम आर स्क्वायर बाय टू, राइट? सो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, ये एम आर स्क्वायर बाय टू है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। सो एंड वी नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई, क्या करें अब? नो हरदाद, नॉट करेक्ट। गिरीश, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आदित्य। देखो कैसे करेंगे, चलो पहले तो गलतियां देखते हैं। ठीक है, लेट्स से गिरीश ने ये कहा है, डू अदर्स अग्री विद दिस? एंड व्हाई नॉट आशीष? व्हाई डोंट यू अग्री विद दिस? करेक्ट गिरीश, करेक्ट। सी, एक हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है, वो होता है 4r/3 पाई डिस्टेंस पे। ठीक है, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर से, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज 4r/3 पाई। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ वन मोर एक्सिस फ्रॉम आर साइड। ठीक है, वी विल ड्रॉ वन मोर एक्सिस फ्रॉम आर साइड, जस्ट अ मिनट। एन एक्सिस लाइक दिस, ये समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आईसीएम है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ आईसीएम ऑल्सो। ठीक है, देखो ये इक्वेशन में लिख रहा हूं, देखना सही है क्या। कैन आई राइट आईसीएम प्लस कैपिटल एम इंटू 4r/3 पाई स्क्वायर इक्वल टू mr² बाय 2? ये चेक करवाया क्या समझ में? मतलब ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आईसीएम प्लस md² शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू। तो यहां से हम आईसीएम निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं मैं, यहां से आईसीएम निकल आएगा। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ आईसीएम, देन यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन वरी अबाउट दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा r-4r/3 पाई। ठीक है, सो जो वैल्यू हमें चाहिए, यू कैन नाउ राइट दैट एज आईसीएम प्लस कैपिटल एम इंटू r-4r/3 पाई square. So either you can work out the value of ICM from equation 1 and put it in equation number 2, or you can simply add these two equation। इनको ऐड करोगे तो ICM एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे है, कट जाएगा ICM एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। मतलब वो एक ही बात है, चाहे यहाँ से वैल्यू निकाल के डाल दो, चाहे दोनों इक्वेशंस को इस तरह से मैनिपुलेट करो कि ICM कैंसिल हो जाए, एक ही बात है। दैट इज जस्ट योर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन। तो इस तरीके से I निकाला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? सीएम ऑफ हाफ स्लैब भी कैलकुलेटेड, याद नहीं है क्या तुम्हें अभी तक आयुष? स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखवाए थे ये प्रीवियस चैप्टर में, यू शुड हैव लाइक, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। जो भी लिखवा रहा हूँ, कीप रिवाइजिंग देम। सेंटर ऑफ मास के
लोकेशंस की एक पेज पे लिस्ट बनाओ, उस पेज को अपने कमरे की दीवार पे चिपकाओ और आते जाते देखते रहा करो उसे। ठीक है, तो बस वो याद की हुई नॉलेज यूज करेंगे। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, अब तुम्हें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के साथ साथ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं वो भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में उनकी डायरेक्टली जरूरत पड़ेगी, मतलब यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न देम। सेकंड स्टेप नहीं समझ में आशी? सेकंड स्टेप में मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी है। हमें इस एक्सिस के अबाउट आई निकालना है और ये आईसीएम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। दिस विल बी आर माइनस 4r/3 पाई। तो आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर करके आई लिखा हुआ है, चेक करो, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। ऑलराइट, ठीक है, अब देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, दिस कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। ये क्या चीज होती है? वी डिनोट इट बाय के एंड इट इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब करना क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम्हें पता है, उसे तुम मास से डिवाइड करके रूट ले लोगे अगर, तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी डायमेंशन बता सकते हो या इसकी यूनिट बता सकते हो मुझे? आई को मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आई को मास से डिवाइड कर देंगे और फिर रूट ले लेंगे, तो जो यूनिट आएगी मीटर्स आएगी। ठीक है, डायमेंशन लेंथ की आ जाएगी। सो वी आर कॉलिंग दिस लेंथ एज रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, वी आर कॉलिंग दिस एज रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका यूज क्या है, मतलब व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? लेट्स से मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है एम मास का और इसका रेडियस ऑफ जायरेशन के है, मैंने कोई वैल्यू दे दी सपोज द, और अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन भी एक्सिस डिपेंडेंट होता है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगा। लेट्स से मैंने कहा कि इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन के है, इस एक्सिस के अबाउट, देन इट वुड मीन कि इस एक्सिस के अबाउट आई को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एम के स्क्वायर करके। मतलब पॉइंट ये है कि अगर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन बता दिया जाता है तो हमें किसी कोएफिशिएंट की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा एम के स्क्वायर करो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली आई की? इसी को रीअरेंज करा है, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करा है। रेडियस ऑफ जायरेशन की जो डेफिनेशन है उसको रीअरेंज करके देखो, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर बन जाएगी। यहां तक आ रहेगा समझ में? ठीक है, I'll take some examples। ठीक है, I'll take some examples that will make it clear। जैसे देखो, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है उनके करस्पॉन्डिंग हम रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक यूनिफॉर्म रिंग है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म रिंग के लिए हमने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखा था, ये लिखा था एम आर स्क्वायर। तो इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो आर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये, तुम अपने आप चेक करो मैं आर क्यों कह रहा हूँ, मतलब जस्ट ट्राई टू पुट सम प्रेशर ऑन योर ब्रेन कि मैंने आर कैसे कह दिया। ये एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क का हमने इस एक्सिस के अबाउट लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द वैल्यू दैट वी रोट वाज एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन जो आएगा वो आएगा आर बाय रूट 2। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन डू फॉर वट एवर ऑब्जेक्ट्स यू वांट टू डू। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक सॉलिड स्फेयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सपोज, सॉलिड स्फेयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी √2/5 × आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्लियर है क्या? अच्छा, इसके इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जैसे इज देयर एनी फिजिकल इंटरप्रिटेशन और सम, मतलब ये तो चलो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से हम निकाल भी लेंगे। ठीक है, बट इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डिस्क टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें किसी को समझाना हो कि एग्जैक्टली है क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो इस डिस्क को, सपोज मैंने तुम्हें एक एम मास आर रेडियस की डिस्क दी। ठीक है, एंड आई टोल्ड यू कि तुम एक काम करो, इस डिस्क को पिघला लो, इसको मेल्ट कर लो, सपोज मेटल की थी। ठीक है, इसको मेल्ट करके तुम एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं। ठीक है, मास चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिन कर लो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो इस डिस्क को हमने मेल्ट करके एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। इनफैक्ट ऐसा जरूरी भी नहीं है, डिस्क अगर बहुत पतली हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक वो जरा से लंप में कन्वर्ट हो जाए। ये बात समझ में आ रही है क्या? if the disk is sufficiently thin, so even the entire volume of the disk may just end up in a small lump।
तो वी कैन कॉल दैट लंप एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इस डिस्क को मेल्ट कर लो, एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर लो, और अब मैं पूछूं कि इस पार्टिकल को एक्सिस से इतना दूर रखो जिससे कि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से मैच कर जाए। ठीक है, जिस डिस्क को हमने पिघलाया था उसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पार्टिकल का चाहते हैं। तो पार्टिकल को एक्सिस से कितना दूर रखें, एक्सिस पर रख दिया तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सिस से हम दूर ले जाते जा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता चला जा रहा है। तो पार्टिकल को एक्सिस से कितना दूर रखें जिससे कि ये पार्टिकल भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर दे जो डिस्क प्रोड्यूस कर रही थी। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। एक डिस्क थी, उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसकी स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, हमने डिस्क को मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस पार्टिकल को स्टैंडर्ड एक्सिस से कितना दूर रखें जिससे कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। द आंसर इज के। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन उस डिस्टेंस को डिनोट करता है जिस डिस्टेंस पे पार्टिकल को रख दिया जाए, सेम मास के पार्टिकल को रख दिया जाए, तो ये पार्टिकल उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट करेगा जितना डिस्क कर रही थी। समझ में आ रहा है क्या? एक इंटरप्रिटेशन ये है। एक दूसरा इंटरप्रिटेशन रिंग की फॉर्म में आता है, क्योंकि रिंग का फॉर्मूला भी एम आर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक इंटरप्रिटेशन तो हो गया पार्टिकल में कन्वर्ट करना। तो पार्टिकल में जब कन्वर्ट करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि हाउ फार वी शुड कीप द पार्टिकल टू गेट द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द आंसर इज के। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि इस डिस्क को मेल्ट करके यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रिंग। ठीक है, डिस्क को मेल्ट करके एक ऐसी रिंग में कन्वर्ट करो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो। तो रिंग का रेडियस क्या ले? डिस्क को मेल्ट करके ऐसी रिंग में कन्वर्ट करो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो, सेम एज दैट ऑफ डिस्क। तो रिंग का रेडियस क्या बनाए? सो विल द आंसर टू दिस क्वेश्चन बी रेडियस ऑफ गायरेशन? अगर हमने के रेडियस की रिंग बनाई तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होगा, एंड वी वांट दिस टू बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। बात आ रही है समझे? तो दूसरा इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके एक रिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो रिंग की जो रेडियस होनी चाहिए जिससे कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, उस रेडियस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। आर वी क्लियर ऑन द इंटरप्रिटेशन? फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा है ही। आर वी क्लियर ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो? All right. So that brings us to end of the topic of moment of inertia। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस ऑब्वियसली बहुत सारी वैरायटी के बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी के होंगे भी। ठीक है, यू आर एनकरेज टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी। ठीक है, उसमें जितने भी एग्जांपल्स हों, जितने भी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, आई हैव नॉट सीन इट बट आई एम प्रीटी श्योर कि एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवोटेड होगी, तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आई विल नाउ मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, सिंस वी आर कॉलिंग दिस चैप्टर एज रिजिड बॉडी, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिजिड बॉडी? ठीक है, Girish, I'll comment on this later on. I told you कि as of now you can remember moment of inertia as certain integrals which will appear again and again। तो उस इंटीग्रल की वैल्यू हमने निकाल के याद कर ली है, और उन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, यूज विल कम लेटर ऑन। इफ यू रिमेंबर, मैंने चैप्टर के बारे में बताया था कि देयर आर सेवरल डिफरेंट क्वांटिटीज जिनको हम पहले इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे और फिर उनके बीच में रिलेशन एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज वन सच क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी मैं रिजिड बॉडी पे जा रहा था, लेकिन अभी कुछ बीच में मुझे और चीज याद आ गई है। सो फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दैट। ठीक है, हमने सर्कुलर मोशन में इक्वेशन पढ़ी थी, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। यू रिमेंबर दैट? सर्कुलर मोशन में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, राइट? सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट इक्वेशन नाउ। ठीक है, उसको हम पूरा उसका कंप्लीट वर्जन देखेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स डू दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, switching the chat to private। So you can see two particles on the screen right now। ठीक है, we are learning how to write angular velocity between two particles। ठीक है, so you can see two particles A and B and they have some velocity vectors VA vector VB vector। इन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक डॉटेड लाइन बना दी है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक डॉटेड लाइन बना दी है, और इस डॉटेड लाइन से दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स के एंगल थीटा 1 थीटा 2 हम मान के चल रहे हैं कि हमें पता है। ठीक है, तो यहां तक देखो सिचुएशन तो क्लियर है क्या? मतलब क्या क्या गिवन है वो चीज क्लियर है। हमको पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर्स पता है,
इन वेलोसिटी वेक्टर्स ने ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन मतलब ये डॉटेड लाइन, ए बी लाइन से जो एंगल्स बना रखे हैं ये हमें पता है, ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में, ठीक है। अब हम पहले ये बात करते हैं कि बी कब कहेगा कि ए घूम रहा है, ए सर्कुलर मोशन कर रहा है, या एंगुलर वेलोसिटी का डिस्कशन कब करेंगे हम, या एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, ये सारे पॉइंट्स को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। देखो, आई एम डुप्लीकेटिंग दिस स्लाइड, ठीक है, सो दैट ओरिजिनल फिगर इज प्रिजर्व्ड विथ मी, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी इस फिगर की दोबारा, विल यूज देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू आस्क यू टू क्रिएट to get the components of both the velocity vectors along the line joining AB and perpendicular to it. Like I'm talking about these components. Pay attention. ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा, और लेंथ नोटिस करो, मैं लेंथ भी सही मार्क कर रहा हूं क्या, ठीक है, मतलब आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज क्लोज टू द एक्चुअल थिंग एज पॉसिबल विदाउट स्केल्स, ठीक है, चेक करो, ये समझ में आ रहा है क्या? Tell me, have I drawn the corrections, the directions correctly? देखो आ रहा है क्या समझ में? दोनों रेड एरो का सम वी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू भी, यस, आयुष इज गिविंग मी द वैल्यूज आल्सो व्हिच इज करेक्ट। ये वाली वैल्यू होगी वी ए कॉस थीटा 1, चलो मैं लिख देता हूँ, वैल्यू भी लिख ही देता हूँ, ठीक है, दिस विल बी वी ए इंटू कॉस थीटा 1, ठीक है, एंड दिस विल बी वी ए इंटू साइन थीटा 1, ठीक है। अच्छा गाइज, ये जो लेक्चर अभी जो मैं ले रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिन लोगों की रोटेशन वीक होती है, जिन लोगों की मैकेनिक्स वीक होती है, उन लोगों का ये पार्ट वीक होता है, मतलब दिस इज द लिंक दैट दे आर मिसिंग, जो उनको नहीं पता होता, और इसी की वजह से उनकी मैकेनिक्स वीक होती है। मतलब आई फाउंड, आई हैव सीन इट ओवर द इयर्स कि स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत इजीली सीख जाते हैं, टॉर्क सब सीख जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, ठीक है, जो मिसिंग लिंक होता है उनकी नॉलेज में वो ये सब होता है जो मैं बताने वाला हूँ, इसकी वजह से दे ऑलवेज स्ट्रगल विद मैकेनिक्स, सो बी केयरफुल ऑन दिस, ठीक है, अच्छे से समझना। तो ये मैंने कंपोनेंट्स बना दिए हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द अदर वेलोसिटी वेक्टर आल्सो, सो ऑफ कोर्स दे विल बी लाइक दिस, ठीक है, एक वेक्टर इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा, ठीक है, वैल्यूज कितनी कितनी लिखेंगे, ऑफ कोर्स ये लिखा जाएगा वी बी कॉस थीटा 2 and this will be VB sin theta 2. Are we clear till now? Are we clear on this? यहां तक ठीक है, क्लियर है? Now let's consider a case, ठीक है, let's consider a case in which VA sin theta 1 is equal to VB sin theta 2, ठीक है, जैसे let's assign a value to it, मान लेते हैं VA sin theta 1 ये भी 2 आ रहा है, ठीक है, और मान लेते हैं ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि ऐसा होने में कुछ इम्पॉसिबिलिटी है क्या, मतलब इफ आई से कि चलो दोनों को 2 2 मान लो, आर यू गोइंग टू से कि नहीं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ, मतलब मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। और जब ये एक्चुअली में ऐसा होगा तो दोनों रेड एरो, दोनों ऐसे वाले रेड एरो इक्वल लेंथ के बनेंगे, इस फिगर में हालांकि इक्वल लेंथ नहीं है, इस फिगर में इक्वल लेंथ नहीं है, बट अगर ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे तो दोनों एरो जो रेड एरो हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम मान लेते हैं इक्वल लेंथ के ही है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा यूनिट्स मान रहा हूं मैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड के बाद ये जो ए पार्टिकल है लेट्स से ये यहां कहीं आ गया होगा, ठीक है, अज्यूमिंग दैट दिस लेंथ इज 2, ठीक है, और बी पार्टिकल यहां कहीं आ गया होगा, राइट, एम आई राइट इन ड्रॉइंग डॉट्स ऑन दीज एरोज, थिंक अबाउट दिस, एम आई राइट इन ड्रॉइंग डॉट्स ऑन दीज एरोज, जो ब्लैक एरोज है मैंने उस पर डॉट्स बना दिए, सही किया गलत किया है? वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दो दो ब्लू डॉट्स मैंने ब्लैक एरोज पे बनाई है, सही किया गलत किया है? इट्स करेक्ट, ठीक है, मतलब क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ मोशन हो गया ए पार्टिकल का, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ मोशन हो गया बी पार्टिकल का, ठीक है। सो ये ब्लू डॉट्स इन्हीं लाइन पे आनी चाहिए थी, ठीक है। सो अभी क्या होगा, अच्छा इन दोनों ब्लू डॉट्स में से कौन सी ब्लू डॉट मुझे ज्यादा ऊंची बनानी चाहिए थी, ठीक है, इनफैक्ट लेट मी ड्रॉ इट अगेन, कौन सी ब्लू डॉट, जैसे एक तो ये हो गई, अब जो दूसरी ब्लू डॉट है वो ज्यादा ऊपर बनाऊं या ज्यादा नीचे, ओके ओके, मेनी ऑफ यू आर राइटिंग इट करेक्ट, गिरीश, ऋषिका, आशीष करेक्ट, आयुष से ऊपर, आयुष नो, क्योंकि मैंने दोनों, देखो जब मैंने ये कहा कि दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से है, मतलब दोनों की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है,
ठीक है, दोनों की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो सेम है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम करेंगे। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? नहीं नहीं आयुष, इन वैल्यूज के हिसाब से सोचो। आई टोल्ड यू कि ये जो फिगर है इसमें इक्वल डिपेक्टेड नहीं है, फिगर में इक्वल डिपेक्टेड नहीं है, क्योंकि फिगर तो एक जनरल केस का बना हुआ था, ये केस तो हमने अज्यूम कर रखा है इक्वल वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग तो ये ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, आ रहा समझ में? और एक सेकंड के बाद की बात करेंगे, तो एक सेकंड के बाद लाइक लेट मी फर्स्ट एक्सटेंड दीज लाइंस ऑफ मोशन, लेट मी फर्स्ट एक्सटेंड, ये ए का लाइन ऑफ मोशन हो गया और ये बी का लाइन ऑफ मोशन हो गया। सो आफ्टर वन मोर सेकेंड वी कैन से कि एक डॉट यहां पे आ जाएगी, तो दूसरी डॉट हमें अगेन सेम लेवल पे मिलेगी। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? लाइक दिस। ठीक है, so with passage of time, if I have to describe that what is going on, ठीक है, I would say that A and B particles are coming closer to each other, but the orientation of line AB is not changing. Like, can I say that line AB is always parallel to its previous position? Line AB is parallel to its previous position. Can I say so? ठीक है, like AB close आते जा रहे हैं, but the line is not turning. ठीक है, यहां तक आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? तो ऐसे केस में एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की ओरिएंटेशन चेंज होने की रेट। फॉर एग्जांपल, अभी तो ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हो रही, तो ओमेगा जीरो हो गई। अभी मान लो अगर एक की वेलोसिटी ज्यादा होती, सपोज ए ज्यादा तेज चल रहा होता, ए अगर ज्यादा तेज चल रहा होता बी के कंपैरिजन में, ठीक है, in that case let me duplicate, like use the blank figure. जस्ट अ मिनट गाइस, ब्लैंक फिगर डुप्लीकेट करने से आएगा। ओके अगर मान लो ए ज्यादा तेज चल रहा होता, अगर ऐसा होता कि वी ए साइन थीटा ए इज मोर देन वी बी और थीटा वन एक्चुअली, ठीक है, इज मोर देन वी बी साइन थीटा टू, तो ए ज्यादा ऊपर तक चला जाता, बी कम हाइट पर जाता, और अब इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ऐसे होती। सपोज ये लाइन अपनी प्रीवियस पोजीशन से 5 डिग्री पे आ चुकी है, ठीक है, सपोज इसकी जो प्रीवियस पोजीशन थी अब ये उससे 5 डिग्री बना रही है, सो आई वुड से दैट 5 डिग्री पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। तुम डिग्री को ऑफ कोर्स रेडियन में कन्वर्ट कर ही सकते हो, सो यू कैन आल्सो मेंशन द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन, द नंबर विल चेंज। सो एंगुलर वेलोसिटी आखिर होता क्या है? एंगुलर वेलोसिटी होता है, जैसे अगर हम बी से पूछे, अब हम बी से पूछे कि भाई ए घूम रहा है क्या, ठीक है, वी आर लुकिंग टू डिटरमाइन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम बी के फ्रेम में चले जाए, जस्ट अ मिनट आशीष, पहले पूरी बात सुनो, क्वेश्चन अभी मत पूछो, अभी सुनते रहो। अगर हम बी के फ्रेम में चले जाए, इफ वी आर बी, इफ वी आर आरसेल्स बी, अगर हम बी है और अगर हम ए को देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ए ऐसे घूम रहा है, मतलब ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ए क्लोज तो आ ही रहा है, ठीक है, क्लोज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लेंथ कम होती जा रही है, ये लेंथ जो है ए बी लेंथ ये रिड्यूस हो रही है, सो ए इज अप्रोचिंग बी एज वेल एज ए इज अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन, लाइक नॉट सर्कुलर एग्जैक्टली बट ए की कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी, सपोज आ रहा है समझ में, और ये एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज आएगी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस करो, ये मैं क्लॉकवाइज किस बेसिस पे कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब यहां पे ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट अ मिनट ऋषिका, एक मिनट बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश फ्यू थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी के रेस्पेक्ट में ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ग्रीन वेक्टर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस वेक्टर की ओरिएंटेशन चेंज होने की रेट, सिर्फ ओरिएंटेशन, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है इसकी ओरिएंटेशन चेंज होने की रेट, मतलब ये कितनी तेजी से अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेंथ कितनी भी चेंज हो रही हो वो एंगुलर वेलोसिटी में काउंट नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब होगा डी बाई डी टी ऑफ दिस एंटायर वेक्टर, जैसे ये वेक्टर अगर मैं आर ए बी लिख लूं, ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी,
बट अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी होगा इस वेक्टर के सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की रेट। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। एंगुलर वेलोसिटी होती है इस लाइन की ओरिएंटेशन चेंज होने की रेट। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज होने की रेट। अभी वो उसको लिखेंगे कैसे, वो सेकेंडरी इशू है। पहले हम समझे कि ओमेगा बाय डेफिनेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक हमने पहले जब ओमेगा पढ़ा था तो हमने इस सिनारियो में पढ़ा था कि एक पार्टिकल यूं चल रहा है, या मान लो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि हमने उस समय ऐसे फिगर्स बनाए थे। ठीक है, और हम कहते थे कि चाहे उसको सेंटर से जोड़ दो और ये रोटेट करने की जो रेट है, तो ये वही बात हो गई। मतलब सेंटर स्टेशनरी मान रखा था हमने इसमें। ठीक है, तो ये लिमिटेड केस था, इसमें मैं दोनों पार्टिकल्स को मूविंग मान रहा हूँ। ठीक है, यहां तक देखो। पहले तो एंगुलर डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है वो क्लियर है क्या। जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या कहेंगे कि चलो बी पे चल के बैठ जाते हैं, यानी कि बी के फ्रेम में चले जाते हैं। लेट्स मूव टू द फ्रेम ऑफ बी। अब हम कहेंगे कि हमें ए की वेलोसिटी जैसी भी दिखाई दे रही है, मतलब अगर ये लाइन हमें घूमती हुई नजर आई तो हम कहेंगे कि ए के पास एंगुलर वेलोसिटी है। और ये लाइन अगर हमें क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आई तो हम ए की एंगुलर वेलोसिटी को क्लॉकवाइज बताएंगे। और ये लाइन अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आती, वो किस केस में नजर आती, अगर बी तेज चल रहा होता, अगर बी का वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होता, ये वाला। ठीक है, तो ए ऊपर उठता लेकिन बी ज्यादा ऊपर उठ जाता, तो बी के रेस्पेक्ट में तो ये नीचे आ गया ना। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, उस केस में फिर हम ए की एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज बताते। यहां तक क्लियर है? अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं, अभी तक के मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो क्लियर करो, मतलब जो भी डाउट है पूछ लो। अभी तक के एक्सप्लेनेशन में केस को मॉडिफाई करके मत पूछना कि सर ऐसा होता तो क्या होता, वो मत पूछना। मॉडिफिकेशंस मैं करूंगा। अभी तक जो मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन करी है उसमें जो डाउट है वो पूछ लो। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि दोनों की इक्वल होती है अगर, तो फिर ये लाइन रोटेट ही नहीं करती। आयुष, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, 5 डिग्री पर सेकेंड विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ऋषिका, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क। ऋषिका देखो, रोटेट करने का मतलब अच्छा ऋषिका ये बताओ, इफ आई से कि ए इज लाइक, अगर ए रोटेट कर रहा है ये बात बोली जाए, विल दैट मीन कि ए सर्कल पे चल रहा है? या इसको ऐसा कहते हैं, अगर बी ने कहा कि ए रोटेट कर रहा है, ए की एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो है, तो वुड यू इंटरप्रेट कि ए सर्कल पे जाना चाहिए, बी के अकॉर्डिंग ए सर्कल पे जा रहा होगा? मतलब आई थिंक यू आर अंडर दिस इंप्रेशन एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का सिर्फ मतलब सर्कुलर मोशन से नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि हम जिस डायरेक्शन को देख रहे हैं वो चेंज हो रही है। मतलब इफ समथिंग इज लाइक इफ आई एम लुकिंग लाइक माय हैंड इज पॉइंटिंग टू समथिंग, और उसको लगातार पॉइंट करने के लिए अगर मुझे हाथ घुमाना पड़ जाए, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि उसमें एंगुलर वेलोसिटी है। अगर उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए मुझे सिर्फ अपना हाथ लंबा करना पड़ रहा है, छोटा करना पड़ता है, लेट्स इमेजिन कि I have this power of extending my hand and like bringing it back to its natural length. तो अगर मुझे सिर्फ आगे पीछे करना पड़े अपना हाथ, then that particular object जिसको मैं reach out करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें angular velocity नहीं है। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए मुझे यूं भी घुमाना पड़ रहा है अपना हाथ, like to continuously point towards that object, if I have to rotate my hand, then it means कि angular velocity है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, मतलब गेट रिड ऑफ दिस आइडिया कि एंगुलर वेलोसिटी मीन सर्कुलर मोशन। नो, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, हम एक प्रोजेक्टाइल की भी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे, कर मतलब इवन दैट कैन बी डन कि एक पार्टिकल को हमने थ्रो करा है, वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल की भी। ठीक है, यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, इनफैक्ट यू आंसर दिस नाउ, थिंक अबाउट दिस। इफ आई टेल यू कि एक पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट करा, पार्टिकल यू मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जैसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। सो आर दीस वेक्टर्स रोटेटिंग और नॉट, लाइक दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन? समझ आ रहा है क्या? ये पार्टिकल जब इस पोजीशन पे से होके जाएगा
तो इनकी पोजीशन वेक्टर ये वाले एरोज होंगे. सो वी कैन से दैट यस द पार्टिकल इज रोटेटिंग, लाइक द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉन जीरो. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है. चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक्चुअली. ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये नेचुरली नहीं आता माइंड में. ठीक है, लेट्स कीप दिस केस इनटू कंसिडरेशन. अभी भी यही मानते हैं ए का जो ऊपर वाला वेलोसिटी था वो तेज था, वो ज्यादा था, और बी का कम था. ठीक है, ए का ज्यादा था, बी का कम था. तो इफ वी आर आस्किंग बी दैट इन विच डायरेक्शन इज ए मूविंग, लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बी इज गोइंग टू से क्लॉकवाइज. यू ऑल अग्री टू दैट? यू ऑल अग्री टू दैट? राइट. चलो अगर हम सेम सिचुएशन में ए से पूछ लें कि भाई बताओ बी कैसे घूम रहा है. ठीक है, बी ने कहा ए घूम रहा है क्लॉकवाइज. अगर हम ए से पूछ ले कि बताओ बी कैसे घूम रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए के अकॉर्डिंग बी घूम भी रहा है या नहीं? ए के अकॉर्डिंग बी घूम भी रहा है या नहीं? ए के अकॉर्डिंग बी की एंगुलर वेलोसिटी जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो होगी. ठीक है, घूम रहा है. तो ए के अकॉर्डिंग बी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अकॉर्डिंग टू ए बी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ओके, बी के अकॉर्डिंग ए क्लॉकवाइज घूम रहा था. बी के अकॉर्डिंग ए क्लॉकवाइज घूम रहा था, ए के अकॉर्डिंग बी घूमेगा. चलो, जो लोग क्लॉकवाइज कह रहे हैं वो ए सेलेक्ट करो, जो लोग एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं वो बी करो. ठीक है, जो क्लॉकवाइज कह रहे हैं वो ए सेलेक्ट करो, जो क्लॉकवाइज कह रहे हैं वो ए सेलेक्ट करो. क्लॉकवाइज इज ए. क्लॉकवाइज इज ए. 50-50 है अभी रेशियो. क्लॉकवाइज इज ए. क्लॉकवाइज इज ए. ओके, आई एम एंडिंग इट. चलो एंड करते हैं. मेरे अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज होगा. अगर बी कह रहा है कि ए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ए भी कहेगा कि बी क्लॉकवाइज घूम रहा है. अनलाइक द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव में ऐसा नहीं होता था. मतलब जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो ए अगर कहेगा कि बी नॉर्थ में जा रहा है तो बी कहेगा कि ए साउथ में जा रहा है. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में. लीनियर वेलोसिटीज में जो मीटर पर सेकंड जिसकी यूनिट होती है, उनमें क्या होता है, इफ ए सेज बी इज गोइंग नॉर्थ, बी विल से ए इज गोइंग साउथ. ठीक है, यहां पे दोनों सेम बताते हैं. लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दिस. ए के अकॉर्डिंग बी पहले सेम लेवल पे था. ठीक है, और अब बी नीचे चला गया है. तो ये रेड लाइन ऐसे रोटेट हो रही है क्या? जस्ट थिंक अबाउट दिस. ए के अकॉर्डिंग बी पहले इस तरफ था. ठीक है, और अब बी थोड़ा नीचे चला गया है. रियलिटी है कि ए भी ऊपर गया है, बी भी ऊपर गया है, ए ज्यादा ऊपर गया है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग बी नीचे चला गया है. तो ये एरो भी क्लॉकवाइज है. नोटिस करो, अगर हम ए को सेंटर मान के ऐसा एरो ड्रॉ करेंगे तो इवन दिस इज क्लॉकवाइज एंड इवन द ब्लू एरो इज क्लॉकवाइज. आ रहा है समझ में? तो unlike the case of relative velocity, in angular velocity of a with respect to b will be same as angular velocity of b with respect to a. of course मैंने अभी तक मैग्नीट्यूड लिखना तुम्हें नहीं बताया है, पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब ये रिजल्ट होता है. मतलब a को b की जो भी एंगुलर वेलोसिटी नजर आएगी, ठीक है, b को भी a की उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी, उतनी ही उसी डायरेक्शन में नजर आएगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अब आती है बात कि एंगुलर वेलोसिटी हम लिखते कैसे हैं. ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड का क्या करें. डायरेक्शन इज ओके, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? सो वी डू अंडरस्टैंड कि एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो तब होगी जब इन दोनों में कोई डिफरेंस हो. राइट, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस हुआ तो ही एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, अदरवाइज तो होगी नहीं. क्लियर है? अच्छा, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो, अगर मान लो बी का जो वेलोसिटी का एरो है वो ऐसे होता, तो क्या कंफर्म होता कि रॉड मतलब ये ए बी लाइन रोटेट करेगी ही करेगी? अगर एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे कहीं जा रहा है, तो कंफर्म है क्या कि रोटेशन होके रहेगा? जस्ट जस्ट इमेजिन दिस ऑन योरसेल्फ. ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ओरिएंटेशन इज बाउंड टू चेंज. तो इस केस में तो कंफर्म ही हो जाता है. ठीक है, सो माय पॉइंट इज वी कैन फिगर इट आउट कि ये जो वेक्टर्स हैं अगर ये इक्वल ना हो तो एंगुलर वेलोसिटी नॉन जीरो होती है.
सो एंगुलर वेलोसिटी शुड डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ दीज टू. जस्ट नोटिस करो, अगर हम बी के फ्रेम में आ जाएं, बी के फ्रेम में अगर आ गए, तो हमें ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ ये नजर आएगी, वी ए साइन थीटा वन माइनस वी बी साइन थीटा टू. ठीक है, अब ये वो केस हो गया कि जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था, चलो उसको भी याद करते हैं. सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि सेंटर तो रेस्ट पे है और एक पार्टिकल इधर चल रहा है किसी स्पीड से. ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर. तो हम ओमेगा को वी बाय आर लिख रहे थे क्या? मेरे को लग रहा है तुम लोग कंफ्यूज हो गए हो थोड़ा. अच्छा, ये जो फिगर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. बी के फ्रेम में ए के वेलोसिटी कंपोनेंट्स ये होंगे, चेक कर लो. बी वाले जो एरो है वो उल्टे करके जोड़ दिए इसमें, मतलब ये देख लो. ठीक है, तो अब अगर मैं बी को एक सर्कल का सेंटर मानूं और ए को मान लू कि चक्कर लगा रहा है, इंस्टेंटेनियस चीज है. ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ए सर्कल पे ही जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि बी सर्कल है, सेंटर है, तो ये चीज हमने पहले पढ़ी है कि वी बाय आर करने से ओमेगा आ जाती है. ठीक है, तो अभी हमें करना चाहिए वी ए साइन थीटा वन माइनस वी बी साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय ए बी डिस्टेंस. ये डिस्टेंस जितना भी हो, ये डिस्टेंस जितना भी हो, दिस विल बिकम एंगुलर वेलोसिटी. इसको मॉड में डाल देते हैं क्योंकि जनरल केस में हमें पता नहीं होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना, मतलब दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, हाउ डज दिस गेट कन्वर्टेड इनटू दिस वन? जिस केस के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है, नोटिस करो उस केस में एक पार्टिकल रेस्ट पे है, सो वीबी इज जीरो एंड थीटा वन इज 90 डिग्री ऑलवेज. सो अगर मैं वीबी को जीरो डाल दूं, थीटा वन को 90 डाल दूं और ए बी को एक फिक्स डिस्टेंस बना दूं आर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला. देखो चीजें आ रही हैं क्या समझ में? ठीक है, ऑफकोर्स मैं अभी एक और तरीके से बता दूंगा जिससे कि और इजी हो जाए याद रखना. ये फॉर्मूला है. ठीक है, आयुष एक्चुअल ओरिजिन नहीं है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. तुम किन दोनों को कंपेयर कर रहे हो ये बताओगे, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज इन योर माइंड, लाइक यू आर सेइंग कौन पहले आया. अच्छा, फॉर्मूले में ऑफ कोर्स दिस लोअर वन इज द करेक्ट वन. यस, दिस इज द करेक्ट वन. लाइक हमने पढ़ा उल्टा है ऑफ कोर्स, क्योंकि पढ़ते वक्त हम उस तरीके से पढ़ते हैं जो हमको समझने में आसान लगे. ठीक है, चलो लेट मी टॉक मोर अबाउट दिस प्रोबेबली. अभी देखो ये समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला. हाँ, एल, गिरीश इज सेइंग दैट एल विल चेंज. यस गिरीश, एल विल चेंज एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस फॉर्मूले से तुम्हें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी. दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. डिफरेंट इंस्टेंट पे ये सब चीजें बदल सकती है, एल भी बदल सकता है. ओमेगा है क्या? इट इज रेट एट विच द लाइन इज रोटेटिंग. तो रेट हमेशा दो तरीके से डिफाइन होती है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज. ठीक है, so this is what I explained, that is written here, that omega ab will be same as omega ba. ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल लो और अगर उनकी एंगुलर वेलोसिटी एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखी जाए तो इट रिमेन सेम. मतलब तुम पार्टिकल इंटरचेंज कर दो तब भी सेम रहेगी, अनलाइक द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है, यहां तक देखो समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी लिखने का तरीका बता दी. मतलब जिस्ट क्या है, कोई कोई समरी है, समथिंग दैट वी कैन इजीली, वी कैन यूज टू रिमेंबर थिंग्स इजीली. तो जिस्ट देखो ये है कि मतलब जैसे हमको दो पार्टिकल्स के वेलोसिटी वेक्टर दिए जाएं, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर्स को अगर हम इस तरह के कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, ठीक है, इस कंपोनेंट इसमें अगर ब्रेक करें, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका यूज आता है अप्रोच वेलोसिटी लिखते वक्त, और इन कंपोनेंट्स का यूज आता है एंगुलर वेलोसिटी लिखते वक्त. मतलब देखो ये बात समझ में आ रही है क्या? जो एक दूसरे की तरफ कंपोनेंट्स होते हैं, दे प्ले अ रोल इन अप्रोच, दे प्ले अ रोल इन अप्रोच.
और इस लाइन से परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं दे प्ले रोल इन चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ दिस लाइन ए बी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अप्रोच वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद है ना? ठीक है, अपन ने अप्रोच वेलोसिटी पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी वाले चैप्टर में, उसमें अपन ने पढ़ा था अप्रोच वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना ये सब। ठीक है, अब मैं आता हूं रोटेशन आखिर होता क्या है एग्जैक्टली मतलब हमने एक लाइन के रोटेट होने की बात कर ली, इनफैक्ट रोटेट होने की बात नहीं करी हमने, लाइन के जैसे एंगुलर वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया है। चलो अभी ये हम एक दूसरी चीज करते हैं, ठीक है। ओके ऋषिका, वेयर वर यू? यस, नाउ दैट यू मेंशन इट, I do notice that you were not there for quite some time, like I was not receiving any messages from you. Okay, all right, चलो चलो ठीक है, सो चलो प्राइवेट चलते हैं, ठीक है। देखो ये मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे जो बना हुआ है वो मैं करके दिखाता हूँ। आर यू एबल टू सी माय मोबाइल? इज दिस लाइक, लेट्स कंसीडर दिस एज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू मूव दिस मोबाइल इन टू वेज। क्लियर है? आई एम गोइंग टू मूव दिस मोबाइल, केयरफुली नोटिस करना, पहले तुम्हें मुझे बताना है कि तुम्हें डिफरेंस दिखाई, दोनों मेथड में कोई डिफरेंस लगाया नहीं, ठीक है। फर्स्ट मेथड इज दिस, लाइक ये मेरी स्टार्टिंग पोजिशन है, I move it like this first, all right, and second one is this, all right. Were they different or were they same motion? Like was there any difference in the two motions? ठीक है, वापस ओके, all right, let's open the chat for this one, ठीक है। वापस से देखना, फर्स्ट मोशन मेरा था like this and the second motion was like this. Any difference or both the motions were same? ठीक है, डिफरेंस था ऑब्वियसली, और स्क्रीन पे बना हुआ भी है फर्स्ट मोशन, जैसे फर्स्ट मोशन में इट्स लाइक दिस, ये है फर्स्ट मोशन, केयरफुली नोट करो, ठीक है, फर्स्ट में है ये, ठीक है, और सेकंड में यस, वाइपर वुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट मोशन, करेक्ट आयुष, वाइपर वुड बी अ गुड एग्जांपल, और सेकंड में इट्स लाइक दिस। क्लियर है? ठीक है, सो ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस एंड द टू फिगर्स आर डिपिक्टेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अभी कंक्लूजन मत दो मुझे, मैं जितना बता रहा हूं अभी उतना सुनो सब लोग, ठीक है। फर्स्ट ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाला केस, ठीक है, मतलब ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो here is a question that which motion has rotation involved in it, ठीक है। so I'm giving you option A and B, which motion has rotation involved in it, which motion has rotation involved in it, ठीक है। रोटेशन चेक करने का तरीका मैं बताता हूं, रोटेशन चेक करने का तरीका जो है, तुम ऑब्जेक्ट पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर दो, अगर वो लाइन तुम्हें अपनी ओरिएंटेशन चेंज करते हुए नजर आ जाए तो ऑब्जेक्ट में रोटेशन है, ठीक है। और अगर वो लाइन अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रही है तो ऑब्जेक्ट में रोटेशन नहीं है, एंड रोटेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गाइस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी आगे चल के कुछ क्वेश्चंस आएंगे विच विल एक्ट एज चेक पॉइंट्स टू वेदर यू हैव अंडरस्टूड दैट और नॉट, ठीक है। उसको गलत आंसर करोगे दैट मींस यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, सो try to answer them correctly in the first go, ठीक है। and they are really good questions, like very subtle questions, ठीक है, लेकिन मतलब अगर तुम उसको सही आंसर कर पाओगे इट विल रिफ्लेक्ट कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही है, एकदम प्रॉपर है, ठीक है। लाइक ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मेनी ऑफ यू टू आंसर दोस क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है। इन दिस वन यस, ए इज द वन इन्वॉल्विंग रोटेशन, ठीक है, ए इज द वन इन्वॉल्विंग रोटेशन, बट डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए पर एक लाइन ड्रॉ करी होती लाइक दिस, ठीक है, तो ये लाइन इन पोजीशन से होके गुजरती, चेक करो, ये लाइंस इन पोजीशन से होके गुजरती, ठीक है।
सो वी कैन क्लियरली सी दैट द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन हैज चेंज्ड, ठीक है। और जबकि अगर हम इस केस पे लाइन ड्रॉ करते तो ये लाइन हमेशा ही अपनी प्रीवियस ओरिएंटेशन के पैरेलल बनी रहती। सो देयर इज नो रोटेशन इन बी, देयर इज ओनली रोटेशन इन ए। सो इन बी ओनली ट्रांसलेशन इज टेकिंग प्लेस। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? इसमें ओनली ट्रांसलेशन इज देयर, ठीक है। और इसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन इज देयर, रोटेशन इज ऑल्सो देयर, ट्रांसलेशन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। अब किसी को अगर ये पूछना है कि इसमें मैं ट्रांसलेशन क्यों बता रहा हूं, तो ये डिस्कशन थोड़ी देर बात करेंगे। मतलब अलग अलग, मतलब ऐसा हो सकता है कि रोटेशन और ट्रांसलेशन भी हो, और या सिर्फ रोटेशन हो, ठीक है। इस वाले में तो ओनली ट्रांसलेशन वाज देयर। अभी यहां तक की बात समझ में आ रही है? मतलब इस वाले, अगर ऐसा कोई केस हमें दिया जाए, ठीक है, इस तरह का कोई भी केस देके अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो वी आर ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी हैविंग दैट नॉलेज दैट वी रिक्वायर टू एड्रेस दिस मोशन, क्योंकि ये मोशन रोटेशन में आएगा ही नहीं, ठीक है, ये ट्रांसलेशन में आएगा। ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस केस को हम सॉल्व करने की पोजीशन में, इसको सॉल्व करने की पोजीशन में भी नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। सो ये मैंने बता रखा है कि कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब मैं ट्रांसलेशन मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। ट्रांसलेशन मोशन में ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये वर्ड मैंने यहां पे यूज किया है। आई एम येट टू एक्सप्लेन व्हाट अ रिजिड बॉडी इज, आई एम येट टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। बट अभी तो चलो जो इंग्लिश में तुम्हें मीनिंग पता हो वही ले लेते हैं। सो ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑलवेज हैव सेम वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है। नोटिस करो, जैसे यहां पे अगर मैं 3 पॉइंट मार्क करूं, ठीक है, तो जो डॉटेड लाइंस हैं वो इन तीनों की ट्रैजेक्टरीज हैं। और वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ट्रैजेक्टरी पे टेंजेंट ड्रॉ करके पता की जाती है क्या? डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ट्रैजेक्टरी पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाती है। So all three particles, we can see that their velocity vectors are parallel as well as they are equal in magnitude. मतलब ये इक्वली होते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे तुम बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल्स पिक करो और उनके वेलोसिटी वेक्टर अगर कंपेयर करो, यू विल फाइंड कि उनके वेलोसिटी वेक्टर्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन की, ये याद रखना। प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी वेक्टर्स आर ऑलवेज सेम, एंड व्हेन आई से वेलोसिटी वेक्टर्स आर ऑलवेज सेम, प्लीज डू नॉट इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट एज कि वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट होना और सेम होना में फर्क है। कांस्टेंट का मतलब इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, दैट इज नॉट करेक्ट। इन द फिगर इटसेल्फ दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, तीन अलग अलग पोजीशंस में वेलोसिटी वेक्टर शो किए गए हैं, एंड दे आर ऑल डिफरेंट। वी कैन सी कि सबकी डायरेक्शन ही अलग है। सो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, पर एट अ गिवन इंस्टेंट ऑल पार्टिकल्स विल हैव सेम वेक्टर्स। ये समझ में आ रहा है क्या? सेम होना और यूनिफॉर्म होना, मतलब पूरी बॉडी के सारे पार्टिकल्स की सेम होना इज डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट होना। कांस्टेंट होने का मतलब कि इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। सो आई एम सेइंग दैट द वेलोसिटी वेक्टर मे चेंज विद टाइम एज इट इज चेंजिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली, ठीक है। इट इज चेंजिंग विद टाइम, बट फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम वेक्टर्स। यहां तक बात आ रही है समझ में? ठीक है, अच्छा। Now trajectory of all points will be identical. When we say कि velocity vectors identical होंगे किसी भी इंस्टेंट पे, तो इसका सीधा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकली मूव करेंगे। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकली मूव करेंगे, तो इसका यह भी मतलब हुआ कि इनकी सबकी ट्रैजेक्टरी सेम होगी। जैसे कि इस फिगर में देखो, सब सारे पार्टिकल्स की जो ट्रैजेक्टरी है वो सर्कुलर है। जैसे if I call this particle the first one as let's say P1, the second one as P2, the third one as P3, so all three particles are moving on circular trajectories, and not only they are same in shape, like not only they are all circular, all the circles have same radius also. They all have the same radius also. Notice this, although the circles are displaced with respect to one another, like overlap nahi kar rahe, thoda bahut upar niche hai, but they are having same radius, and they all are circles. ऐसा नहीं है कि एक सर्कल है, एक एलिप्स है, एक हाइपरबोला, ऐसा कुछ नहीं है। They are all circles, they are all have same radius. So these two are very very important properties of translational motion, very 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 important properties, ठीक है, keep them in mind, ठीक है। तुम्हें कभी आगे चल के ना कुछ बेसिक डाउट्स वगैरह आएंगे, तो यही पॉइंट है जो तुम्हें रेस्क्यू करेंगे।
ठीक है, मतलब दीज आर द थिंग्स जो हमारे माइंड से स्लिप होती है, जो डाउट्स क्रिएट करती हैं, और कई बार बहुत छोटे छोटे डाउट्स हमारे माइंड में अराइज होते हैं जिनको एड्रेस करने के लिए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है. ठीक है, सो अज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन नाउ. ठीक है, सो व्हेन रोटेशनल मोशन इज प्रेजेंट, you have to first note that velocity may have different points may have different velocity vectors. Is it evident from this figure? We can clearly see कि ये जो पॉइंट है ये ज्यादा फास्टर ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. कैन यू सी दैट? ये जो सबसे बाहर वाला पॉइंट है इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है एज कंपेयर टू दिस वन इन द सेम टाइम. So obviously the outer point is moving faster, so the velocity vector should have a longer length. Like given that the length of a vector indicates the magnitude, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हमें ज्यादा लंबा एरो बनाना चाहिए एज कंपेयर टू द इनर वन. So different points of a rigid body may have different velocity vectors if rotation is present. ठीक है, and you can also see that the trajectories are different. Like although the trajectories are all circular, but the radius are different. The radii are different. यहां तक आ रहा है समझे? मतलब रोटेशन प्रेजेंट होने पर अलग अलग पार्टिकल्स के सेम इंस्टेंट पे एक ही बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग वेलोसिटी वेक्टर हो सकते हैं और इनकी ट्रैजेक्टरीज भी डिफरेंट होंगी. यहां तक देखो आ रहा है क्या समझ में? ओके, आई एम प्रीटी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. किसी और को ये डाउट आ रहा है मैं क्यों लिखा है यहां पे? तो डेफिनेटली लिखना चाहिए था ना. मतलब given this example that I'm taking, it should be like why may should not be there. It should be definite. Different points should have different velocity. ठीक है, सो may क्यों डाला मैंने? ठीक है, may डालने का रीजन बहुत ही सिंपल सा है. ऑब्जेक्ट में कुछ थिकनेस भी है. ऑब्जेक्ट में कुछ थिकनेस भी है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं इस मोबाइल को रोटेट करा रहा हूं तो एक पॉइंट तुम यहां फ्रंट में पकड़ लो, या ये फ्रंट है, एक पॉइंट फ्रंट में पकड़ लो और एक पॉइंट एग्जैक्टली इसके पीछे. ठीक है, लाइक दिस. एक पॉइंट यहां फ्रंट में पकड़ लो. ठीक है, एक पॉइंट फ्रंट में पकड़ लो और एक एग्जैक्टली इसके पीछे. सो एटलीस्ट दीज पॉइंट्स विल हैव सेम वेलोसिटी वेक्टर, राइट? तो थिकनेस भी तो है. सो अक्रॉस थिकनेस भी, लाइक अगर मैं इसी फिगर में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट. ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट. लेकिन जैसे लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई. ये जो मैंने अभी ग्रीन लाइन बनाई है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन बनाई है, यहां पर अगर मैं दो पार्टिकल्स यूं ले लूं, सो दे विल हैव सेम वेलोसिटी वेक्टर. आ रहा है समझ में? ठीक है, नहीं, अक्रॉस ब्रेड्थ नहीं हो पाएगा. अक्रॉस, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ऋषिका, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, डायरेक्शंस में फर्क आ जाएगा. लाइक आई थिंक यू आर ओनली नोटिसिंग द रेडियस हेयर, बट इनकी डायरेक्शंस में फर्क आएगा. ठीक है, जैसे टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट मोर क्लियरली, तुम थोड़ा बड़ी लाइन ड्रॉ करके देखो. इधर टेंजेंट ऐसे बनेगा, इधर टेंजेंट ऐसे बनेगा, एंड दे बोथ विल मूव ऑन द सेम सर्कल. सो द ट्रैजेक्टरी विल बी सेम, बट फॉर अ गिवन इंस्टेंट देयर वेलोसिटी विल नॉट बी सेम. क्लियर है? यहां तक आ रहा है क्या समझ में? चलो, अब यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं. बी वेरी वेरी अलर्ट ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, डोंट गेट इट रॉन्ग. ये अरेंजमेंट देखो, समझ में आ रहा है क्या? इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बैलिस्टिक पेंडुलम. तो ये वर्ड भी याद रखना, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर मान लो केवल ये वर्ड लिख दिया, फिगर नहीं बना के दिया, तो इट शुड बी क्लियर टू यू कि बैलिस्टिक पेंडुलम क्या होता है. ठीक है, यू हैव टू टेल मी कि ये जो मोशन डिपिक्टेड है, कैन यू नोटिस दिस मोशन? ठीक है, इस मोशन, हाँ, बैलिस्टिक पेंडुलम मेरे ख्याल से पहले भी आई थी, मैंने यूज किया था. कोनिकल पेंडुलम पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि मैंने समझाया था कि नहीं. Is this object undergoing rotation? In the motion depicted, is the wooden object undergoing rotation? Is the wooden object undergoing rotation? Correct, Hardat. Is the wooden object undergoing rotation? Okay, great. जिन्होंने भी चैट में आंसर लिखा है सबने सही लिखा है. I'm ending the quiz and ग्रीन हमेशा यस वाला रहता है, सो ये ग्रीन वाला करेक्ट नहीं है. नो इज द करेक्ट आंसर. हु सेड यस? somebody said yes. somebody said yes. भाई तुम वो लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ना, इस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो.
ठीक है, इस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो एंड यू विल फाइंड कि वो जो लाइन है, ठीक है, आयुष 8 पीपल आर नॉट वॉचिंग, रिस्पॉन्स 8 पर्सन ने दिया था, जिसमें से 7 ने नो कहा और 1 ने यस कहा। ठीक है, तो लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, इट्स ओनली अंडर गोइंग ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने मार्क करे हैं ए बी सी डी, ठीक है, आई डू बिलीव कि इनकी ट्रैजेक्टरी सर्कुलर होगी, लाइक डू यू अग्री विद दिस? ए बी सी डी की ट्रैजेक्टरी सर्कुलर होगी, डू यू अग्री विद दिस? A, B, C, D, they will move on circular trajectory. Okay, great. Again, yes. So जो whoever answered, ठीक है. Let me also mark one more point. मैं क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं, इस पॉइंट को मैं E कर देता हूं, ठीक है, एंड आई एम गिविंग सम एडिशनल डेटा। स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं L है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं A है, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का। और अगर तुम्हें इस वुडन ऑब्जेक्ट की लेंथ भी चाहिए तो ये B मान लेते हैं, और ये जो साइड है वुडन ऑब्जेक्ट की, ये वाली, इसको D मान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो जो गिवन क्वेश्चन है उसको भूल जाओ, विल टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन लेटर ऑन। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, I do believe you will agree with me if I say that E is moving on a circular trajectory. You will agree with me? E is moving on a circular trajectory. ठीक है, so my question is, what is the radius of E? All right, you all agree with me? So my question is, what is the radius of the path of E? I'll give you options. ठीक है, क्वेश्चन है कि इसका रेडियस कितना होगा, आर ई जो है ये कितना होगा। आई विल गिव यू ऑप्शंस, आई कैन ऑलरेडी सी आंसर्स फ्लैशिंग देयर। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन देता हूं, एक ऑप्शन ये रखते हैं, ठीक है, एक ये रखते हैं, ठीक है, और देता हूं। चलो, आई थिंक इट शुड बी इनफ। कुछ लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो है। जिन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया वो चैट में भी बता सकते हैं, सो दैट आई नो कि किसने क्या सेलेक्ट किया है। ओके, गिरीश आयुष ने सेम किया है, हरदात ने भी सेम किया है, गिरीश आयुष एंड हरदात सेम। आशीष also same. Ashish, Girish, Hardat and Ayush same. And Yotsna has selected a different option. Yotsna has selected a different option. And waiting for others to respond. Aditya matches with Yotsna. Aditya and Yotsna are going for the same option. Okay, just to help you all are wrong. ठीक है, and hence my assertion proven to be right. मैंने कहा था कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, many of you will get it wrong. और अगर तुमने सही दे दिया then it would mean कि you all are absolutely correct. Like you all, मतलब जिसने भी सही आंसर दिया, it would be like कि उसको एकदम क्लियरली समझ में आया। ठीक है, हरदात ऐसे मत बोलो कि इज दिस द आंसर, इज दैट द आंसर, क्योंकि ऑप्शन तो 5 ही है, 2 को मैंने गलत कह दिया है। अब वो कौन से 2 हैं, उनमें से एक गलत कौन सा है तुम जानते हो। ठीक है, तो
इसके बाद भी अगर तुम एक ऑप्शन देके मतलब पूछोगे, यू हैव टू टेल मी कि तुम कंक्लूसिवली उसको कह रहे हो या नहीं. ओके, गिरीश एंड आयुष हैव चेंज्ड देयर आंसर्स. नाइस. ऋषिका, तुम्हारा आंसर तो मैंने देखा ही नहीं. ओके ऋषिका, यू वर गोइंग विद द प्रीवियस आंसर ऑफ गिरीश, आयुष, आशीष एंड हरदात. Hardat, I've read your message. Hardat has given the correct answer. And nice that you have given the reason to. Hardat ने correct answer भी दिया और reason भी दिया है. So हरदात, यहाँ से क्या सीख मिलती है तुम्हें? तुम इस बात का सही जवाब दे दो, मैं मान जाऊं तुम्हें. करेक्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. आराम से तुमको चीजें देखो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम सोच के जवाब दो. कॉन्सेप्ट्स पढ़ के भी अगर हमें वो करना है, इनी मीनी माइनी म्यू करके आंसर करना है, तो पढ़ने का फायदा क्या है? वो तुम वैसे भी कर सकते हैं बिना पढ़े भी. ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, यू विल गेट द आंसर. ओके, लेट मी जस्ट हेल्प यू ऑल विद दिस. मैं, पता है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, मैं और 2-3 क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा ना, तो यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स प्ले अ गेम. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि अगर तुम अपने आप से करेक्ट क्वेश्चंस पूछ लो तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. ठीक है, आई विल नॉट टेल यू कि जो तुम आंसर दे रहे हो करेक्ट है कि नहीं है. लेट्स पे अटेंशन टू दिस पॉइंट. ठीक है, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा. ओके, आई एम एंडिंग दिस क्विज राइट नाउ. आई विल अगेन लॉन्च दिस क्विज. ओके, लेट मी आस्क यू 3-4 क्वेश्चंस, देन आई विल अगेन लॉन्च दिस क्विज. मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा तुम्हें. आई विल नॉट टेल यू वेदर यू आर करेक्ट और नॉट ऑन एनी क्वेश्चन. ठीक है, जस्ट अ मिनट. आई डिड नॉट डुप्लीकेट दिस साइड. एनीवेज, चलो, ये जो स्ट्रिंग आके कनेक्ट हो रही है वुडन ब्लॉक से, इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं. ठीक है, एक मैंने पॉइंट पे ध्यान दिया, वुडन ब्लॉक पे एक पॉइंट लिया एक्स, जो स्ट्रिंग जहां पे आके कनेक्ट हो रही है. क्या एक्स सर्कल पे चल रहा है? माय फर्स्ट क्वेश्चन. माय सेकंड क्वेश्चन, क्या मुझे एक्स का रेडियस पता है? और माय थर्ड क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन है? माय फोर्थ क्वेश्चन, क्या ट्रांसलेशन में सबकी ट्रैजेक्टरी आइडेंटिकल होती है? ठीक है, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन. क्या एक्स सर्कल पे चल रहा है? क्या मुझे एक्स के सर्कल का रेडियस पता है? क्या ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है? क्या ट्रांसलेशन में सबकी ट्रैजेक्टरी आइडेंटिकल होती है? आई एम अगेन गिविंग यू ऑप्शंस, सेलेक्ट. ओके, जितने लोग भी लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, आई एम जस्ट एंडिंग द क्विज. ठीक है, इफ समबडी इज स्टिल टू डू, जल्दी करो क्योंकि अब तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए. आई विल सेलेक्ट माय आंसर. ई इज द करेक्ट वन. आदित्य, तुम तो अभी भी दिमाग नहीं लगा रहे. और कितना बड़ा हिंट दूंगा? ऋषिका, दैट वाज योर सेकंड चॉइस. दैट वाज योर सेकंड चॉइस. ठीक है, क्या अथर, यू आर सेइंग कि तुमने पहले भी लिखा था और बाद में भी लिखा था? तुमने तुमने मैसेज ही कहाँ किया अथर? कुछ भी बोल दोगे क्या अथर? आई डोंट हैव योर मैसेज. अच्छा, ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, चलो. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर दे दो. फिगर शो स्विंगिंग, ये जो क्वेश्चन एक्चुअल में स्क्रीन पे लिखा है, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? रीड दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन. यस, करेक्ट, करेक्ट, एवरीबॉडी करेक्ट. ठीक है, ट्राजेक्टरीज विल बी इक्वल, लाइक ऑल टाई. सो सबका सेम होगा. और कितना होगा?
सर्कल्स ऑफ रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद डिफरेंट सेंटर्स। सबके सेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होंगे, लेकिन सबका रेडियस जो होगा वो एल के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी का, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ रिजिड बॉडी, सो आई विल कवर दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। All right. Okay. Yes, class is over for now. ठीक है, tomorrow I think you guys have test Galaxy today. आज मैं लाया नहीं हूँ actually Galaxy. Like not today, maybe in the next class. I'll just let you know. ठीक है. And good luck for the test. Test में moment of inertia तक आएगा, so better practice some questions of moment of inertia. ठीक है, you can also use you can use Galaxy to practice. You can use any other questions. Yeah, like टेस्ट है कल, तो कर लो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस, हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, बिकॉज एकला पढ़ो रे, बिल्कुल सही बात है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एकला पढ़ो रे? वैसे ये गाना बहुत सही लगता है मुझे। ठीक है, नॉर्मली मुझे बंगाली गाने, मतलब बंगाली गाने ख्याल मैंने बहुत सारे सुने भी नहीं है, बट दिस एकला चलो रे इज गुड। ओके, जो 10% हमेशा गलत है, देखो भाई सीधी बात ये है कि केवीपीवाई जो है वो टैलेंट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो टैलेंट नीचे के 10% में मिलता भी नहीं है। मतलब अब ये बात ऐसी है जो मैं बोल नहीं सकता सबके सामने ना, मतलब आई हैव टू टेक केयर कि मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट फैक्ट रिमेन्स एज इट इज, तो क्या करें। ठीक है, यस ऋषिका, एंड आई 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 एम अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि जैसे अगर मैं कहूंगा कि भाई थोड़ा सोच के नो सेलेक्ट करना, जब भी मैं कहता हूं कि सोच के फिर जवाब देना, नो सेलेक्ट मत करना, एज आई हैव डन इन टुडे सेशन मेनी टाइम्स, देयर आर ऑलवेज फ्यू जो क्विज लॉन्च करते ही नो सेलेक्ट कर देते हैं। So I understand that कि some people are just doing the session for the fun sake. ठीक है, चलो guys, let's end this session today for now. ठीक है, इसमें previous session के भी notes हैं. Do you want me to keep them or do you want me to delete them? Previous session के notes हैं इसके अंदर. Let's delete them, हाँ? Yeah, let it be. Okay. All right. चलो ठीक है. Ending the session. Yes, WhatsApp पे मैं भेज दूंगा. Yes, WhatsApp पे भेज दूंगा. Very good. Read Hardap's message. Okay guys, bye bye, take care. Theory Hardap, ये moment of inertia की theory. Bye guys, take care. Yeah, I'll send it. हाँ भाई, I'll send it Hardap. Bye guys, good night. Enjoy your weekend and all the best for the test. हाँ, good luck, अच्छा करके आना test. ठीक है, give ample time to physics and make sure that you are getting good marks in physics. Bye bye.